JNU کے طالب علم نجیب احمد کو دہشتگرد تنظیم ISIS کا ہمدرد بتانے والی تمام آن لائن میڈیا رپورٹس کو ہٹانے کا دہلی ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے۔ نجیب کی والدہ کی میڈیا ہاؤس سے معاوضے کی عرضداشت پر سماعت کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ نے اسے ایک بے حد حساس معاملہ قرار دیا۔ نجیب احمد کو آج بھی آن لائن میڈیا رپورٹس میں دہشت گرد تنظیم ISIS کا ہمدرد بتانے والی خبریں موجود ہیں، جبکہ دہلی پولیس میڈیا کی ان خبروں کو بے بنیاد قرار دے چکی ہے۔ نجیب کی والدہ نے دہلی پولیس کے دعوے کی بنیاد پر میڈیا ہاؤسز پر 2 کروڑ 2 لاکھ روپے کے معاوضے کا ہتک عزت کا مقدمہ کیا۔ سماعت کے دوران دہلی ہائی کورٹ نے اس معاملے کو حساس قرار دیتے ہوئے تمام میڈیا ہاؤسز کو حکم دیا کہ نجیب کو ISIS کا ہمدرد قرار دینے والی ان تمام خبروں کو YouTube سمیت کئی آن لائن سائٹ سے ہٹانے کا حکم دیا۔ جسٹس J ارمدھا نے میڈیا ہاؤسز کو اس ضمن میں انتباہ بھی دیا، جس کے بعد میڈیا ہاؤسز کی پیروی کر رہے وکیل نے ہائی کورٹ کو جلد از جلد اس طرح کے کنٹینٹ کو ہٹا لینے کی یقین دہانی کرائی۔ عدالت کے احکامات ایسے وقت آئے ہیں جب کچھ روز قبل ہی دہلی ہائی کورٹ نے نجیب گمشدگی معاملے کی SIT جانچ سے انکار کرتے ہوئے CBI کو کیس کی کلوزر رپورٹ داخل کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ نجیب گمشدگی معاملے کی سماعت کے دوران کچھ میڈیا ویب سائٹس پر ایسی خبریں نشر کی گئی تھیں جس میں نجیب کو ISIS کا ہمدرد بتایا گیا۔ حالانکہ دہلی پولیس نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا تھا۔ حقوق انسانی تنظیموں اور یونیورسٹیوں، کالجز کے طلبہ نے اس دوران بلا شرط معافی کا مطالبہ کیا تھا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ مغربی بنگال کی ممتا حکومت کے ذریعے 28,000 درگا پوجا کمیٹیوں کو فیکس 10,000 روپے گرانٹ مختص کیے جانے کا معاملہ اب سپریم کورٹ جا پہنچا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سماعت قبول کر لی ہے۔ 11 اکتوبر کو سپریم کورٹ اس معاملے پر سماعت کرے گا۔ بدھ کو کلکتہ ہائی کورٹ نے اس معاملے میں دخل دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وکیل سوربھ دتا نے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں دلیل دی کہ ممتا حکومت کا درگا پوجا کمیٹیوں میں گرانٹ کی تقسیم کو قانون کے بنیادی اصولوں کے خلاف قرار دیتے ہوئے عاجلانہ سماعت کی اپیل کی۔ عرضی گزار کے مطابق درگا پوجا کمیٹیوں کے لیے 28 کروڑ روپے کا گرانٹ مختص کرنے میں کوئی عوامی مفاد نہیں ہے، بلکہ یہ خیرات ہے۔ یوپی سے اہم خبر ہے۔ بلند شہر صدر کے BSP کے سابق رکن اسمبلی اور وہاں کے قداور لیڈر حاجی علیم غازی کی موت کے 24 گھنٹوں بعد ان کے اہل خانہ نے حاجی علیم کو قتل کیے جانے کا اندیشہ ظاہر کر دیا ہے۔ حاجی علیم کے اہل خانہ نے حکومت سے اس سلسلے میں جانچ کا مطالبہ کیا۔ 10 اکتوبر کی رات حاجی علیم کے کمرے سے ان کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ حاجی علیم کے سر میں گولی لگی تھی۔ موقع واردات سے ایک پسٹل اور گولیاں برآمد ہوئی تھی، چونکہ گولی سر میں لگی تھی اس لیے معاملہ خودکشی اور قتل کا مانا جا رہا ہے۔ فورینسک ٹیم نے جائے واردات کا جائزہ لے کر اپنی جانچ شروع کر دی ہے۔ ہمارے اوپینین میں یہ مرڈر کیس ہے اور انہی کی پسٹل سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ باقی پولیس جو ہے تفتیش کر رہی ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹس وغیرہ کے سب کے مطابق ابھی تک یہ صاف صاف کلیئر ہے کہ یہ سوسائڈ کیس نہیں ہے، جیسا کہ ایک اینگل سوسائڈ کا لیا جا رہا تھا کیونکہ ان کا اپنا پسٹل تھا اور ان کا لائسنس پسٹل تھا تو وہ ان کے کمرے میں رہتا ہی تھا ان کے قریب، اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے پسٹل سے ہے یا اندر سے بند تھا جیسا کہ پولیس کہہ رہی ہے۔ تو پولیس تفتیش کر بتائے گی، اس کے بعد جو بھی رزلٹ نکل کر آتا ہے۔ بہرحال ہمارے اوپینین میں یہ سوسائڈ کیس نہیں ہو سکتا اور وہ سوسائڈ کرنے والے آدمی تھے نہیں۔ پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا، اس میں گن شاٹ انجری ملی اور ایک ہی گولی لگی ہے جس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی اور ان کے باقی چوٹیں نہیں پائی گئی اور اس کے اترکت یہ گولی ماری بھی گئی ہو سکتی ہے اور خود بھی ماری گئی ہو سکتی ہے۔ اوپینین نشکرش پر بھی نہیں پہنچ پائے ہیں۔ انویسٹیگیشن اور ایویڈنس جو پراپت ہوئے ہیں ان کے آدھار پر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آتم ہتیا ہے یا ہتیا ہے۔ خبر رانچی سے ہے، جہاں کی مختلف تنظیموں نے جلیل انصاری کے اہل خانہ کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ جوا کھیلنے کے جرم میں جلیل انصاری کو 20 اگست کو پولیس نے گرفتار کیا اور اس کی پولیس تحویل میں پٹائی کی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اندرونی چوٹ موت کی وجہ بتائی گئی، تاہم تقریباً 2 مہینے گزر جانے کے باوجود جلیل انصاری کے اہل خانہ کو کسی طرح کی کوئی مدد نہیں دی گئی اور جس کی وجہ سے جلیل انصاری کی بیوہ اور ان کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔
अच्छा बक्सा कारीगर काम करते थे, बस पुलिस पकड़ के ले गया, कैसी बुरी तरीका से मारा जो उनकी मौत हो गई। और हमको इंसाफ चाहिए। बच्चों लोग को कैसे पालेंगे हम, छोटा छोटा बच्चा है, इतना बड़ा जिम्मेदारी कैसे लेंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। पुलिस के मार से उसकी मौत हुई है तो इसकी तहकीक होनी चाहिए और उसकी बेवा को जो है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। इसी प्रदेश में और प्रदेश से बाहर ऐसी मिसालें हैं कि ऐसी घटना हुई तो फ़ौरन उसको सरकारी मदद दी गई, लेकिन जलील अंसारी की बेवा को अब तक कोई सरकारी मदद नहीं दी गई। तो अब ये सवाल है कि अगर देश के अंदर में कहीं भी इस शासन में कोई न्याय नाम की चीज़ बची है तो जलील के परिजनों को मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं, जो पुलिस वाले पिटाई किए हैं, उसकी शिनाख्त की जानी चाहिए और वैसे लोगों पर जो है मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी हो। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट गिरिराज सिंह ने एक मर्तबा फिर राम मंदिर की तामीर के इशू को हवा देने का काम किया और इस मर्तबा गिरिराज सिंह के बयान को सीधे सीधे मुसलमानों को धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। गिरिराज सिंह के मुताबिक मुल्क के तमाम हिंदू और मुसलमानों को राम मंदिर की तामीर में ताउन करना चाहिए और अगर राम मंदिर तामीर नहीं किया गया तो इससे हिंदुओं को तकलीफ होगी और फिर कुछ भी हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि गिरिराज सिंह के इस मुतनाज़ा बयान पर उलमाए देवबंद ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे गैर जरूरी और बेहद खतरनाक करार दिया। कोर्ट के अंदर चल रहा है ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर जो फैसला सुनाएगा हमें वो मंजूर है। तो ये गिरिराज जो है और आरएसएस के नेता इस तरीके की बयानबाजी करके जो है लोगों को भटकाने का काम करते हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि इनकी बातों पर कोई तवज्जो न दें। अदालत में मुकदमे के होने के बावजूद इस तरह के इक़दामात और इस तरह की बातें करना यकीनन अदालत के एहतराम के खिलाफ है, मोहब्बत और भाईचारा के खिलाफ है। इसलिए ऐसे मौके पर अपील की जाती है कि तमाम लोग अक्ल होश से काम लें और अपने अमन व अमान को बाकी रखें और अदालत के ऊपर फैसला। बंगाल में मुकीम रोहिंग्या मुतासरीन की उनके वतन वापसी के लिए जहां मरकजी हुकूमत ने बंगाल हुकूमत को लिस्ट बनाने की हिदायत दी, वहीं इन मुतासरीन के इमदादी कामों में जुटी जमात-ए-इस्लामी हिंद की बंगाल यूनिट ने मौजूदा हालात में इनकी म्यांमार वापसी को ही नामुमकिन करार दिया। रियासत के साउथ 24 परगना के बरईपुर में जमात-ए-इस्लामी और दीगर हुकूक इंसानी तंजीमों ने रोहिंग्या मुतासरीन के लिए मकान भी तामीर करवाए हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी रोहिंग्या मुतासरीन के तई हमदर्दी का इजहार किया था और इस मामले में मरकजी हुकूमत के रवैये पर सख्त तनकीद भी की थी। लेकिन गुज़िश्ता माह कोलकाता में मुनक़िदा ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग में वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने हुकूमत को रोहिंग्या मुतासरीन की शिनाख्त करने की हिदायत देते हुए इनकी वापसी को जरूरी करार दिया था। बंगाल में जहाँ जहाँ रोहिंग्या लोग है सबके पास कार्ड है, यूएनओ को कार्ड है। यूएनओ को कार्ड का मतलब ये है कि किसी स्टेट में वो कार्ड लेके वहाँ रह सकते हैं, वहाँ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और आफ्टर ऑल रोहिंग्या जो लोग मुसीबत में फंस करके हमारा देश में आया, उनको मदद करना, उनको हेल्प करना, उनको सहायता करना ये हमारा जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियां अपने दावे चाहे जो भी करें, लेकिन मुस्लिम वोटर्स सियासी पार्टियों के रुझान से बेहद नाराज हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने इस बार मुस्लिम नुमाइंदगी को जहां हाशिए पर रखा, वहीं दूसरी सियासी पार्टियों का रवैया भी कुछ कम नहीं है। बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी और मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा के सदर हाजी हारून असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदगी के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा करते रहे हैं। हाजी हारून मध्य प्रदेश कांग्रेस अक़लियती सेल के 4 बार सदर रह चुके हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश कांग्रेस की क़यादत जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स के साथ रुख इख्तियार किए हुए, इससे वो सख्त नाराज नजर आते हैं। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात, मुस्लिम मसाइल और मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर हमारे नुमाइंदे ने हाजी मोहम्मद हारून से खास बात की है। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर जारी हैं। कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी या फिर दूसरी पार्टियां, सारी पार्टियां अक़लियतों का वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन जब बात नुमाइंदगी की होती है तो सब ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। आज इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस अक़लियती सेल के 4 बार के सदर और बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी के सदर
हाजी हारून साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं हाजी साहब आखिर क्या वजह है कि हमें देखते हैं कि इस बार के इलेक्शन में पार्टियां बात तो कर रही हैं लेकिन मुसलमानों के मसाइल और मुस्लिम नुमाइंदगी पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज़ादी के बाद से आज तक जो पार्टियां मुसलमानों की बात का दम भरती थीं वो हों या जो मुखालिफत करती थी वो हों, किसी ने भी मुसलमानों की फिक्र नहीं की। समाजी और इक़्तिसादी तौर पर मुसलमानों में जो लोग पिछड़ गए हैं, बैकवर्ड हो गए, इकोनॉमी में जो कमज़ोर हो गए, उसकी बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पार्लियामेंट में, असेंबली में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जिस पार्टी से आप 4 बार अक़लियती सेल के मध्य प्रदेश के चेयरमैन रहे, हमें देख रहे हैं कि उस पार्टी में भी मुसलमानों की बात नहीं मानी जा रही है। बिल्कुल, ये बात एकदम सही है। आज मुसलमानों का कीमती सरमाया बैरून मुल्क जाकर काम कर रहा है, तो ये मुल्क का नुकसान है। मुल्क का कीमती सरमाया बाहर क्यों जाए? और कांग्रेस का तो रिवायती एक ताल्लुक रहा है मुसलमानों से। मुसलमानों का बड़ा हिस्सा हमेशा से, बल्कि 99% हिस्सा कांग्रेस से जुड़ा रहा है, लेकिन आज मुतमईन नजर नहीं आता है। और अगर ये हालात रहे तो मुसलमान कांग्रेस से बहुत दूर हो रहे हैं और दूर हो जाएंगे। हमने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि कांग्रेस जो अपना सेकुलर किरदार जो था उसको अदा नहीं कर रही है और यही वजह है कि मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। अगर वक्त रहते कांग्रेस ने इस जानी तवज्जो नहीं दी तो उसको बहुत अफसोस होगा। कैमरामैन शेख अब्दुल के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। जमात इस्लामी ने तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के ज़िम्न में अवामी मंशूर का इजरा किया। जमात इस्लामी तेलंगाना चाहती है कि तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली तमाम सियासी जमातें इस अवामी मैनिफेस्टो में शामिल नुकात को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल करें। जमात इस्लामी एक सर्वे के जरिए गुज़िश्ता 3 दहों में रियासती हुकूमतों के मुजाहरे से मुतालिक अवामी राय हासिल करेगी और इस सर्वे के नताइज को बुनियाद बनाकर अगले असेंबली इंतखाबात में किस पार्टी की तायद की जाए इसका फैसला करेगी। रोजगारी के मसले को हल करने के लिए कुछ कोशिशें की जानी चाहिए। वो किसानों के लिए उनको बिला सूद के, बग़ैर सूद के उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको पैसा चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स जो है ले आए जाएं कि इसमें हर फोर्स के अंदर मुसलमानों का होना बेहद ज़रूरी है। सब प्लान मंजूर करने का डिमांड उसके अंदर मौजूद है। हर डिस्ट्रिक्ट में टेमरीज की तरह डिग्री कॉलेज भी कायम किए जाएँ, डिग्री कॉलेजेस, और उसके अंदर IAS, IPS और UPPS के एग्ज़ाम्स वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह भी उनको दी जाए ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर शिरकत कर सकें। फिर इसी तरह वक्फ जो जायदादें हैं उस पर बड़े क़ाबिज़ीन हैं और बड़े क़ाबिज़ीन के अंदर सर फहरिस्त खुद हुकूमतें हैं, हुकूमती इदारे हैं, गैर हुकूमती इदारे हैं और इनफरादी अफराद भी हैं। उसको किराए के तहत लाया जाए और वक्फ को जुडिशरी पावर्स दिए जाएं। श्री कृष्णा कमीशन ने तो यहाँ तक कहा कि अगर दस्तूर के अंदर तरमीम करते हुए रिजर्वेशन देने की ज़रूरत पेश आए तो दस्तूर में तरमीम करते हुए रिजर्वेशन दी जाए। तो ज़ाहिर है कि ये मतालबा हमारा है कि 12% रिजर्वेशन के बग़ैर मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट यहाँ पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कंपटीशन के अंदर बहुत पीछे हो चुके हैं। सफर हज के लिए ग्लोबल टेंडर तलब करने का मुतालबा तूल पकड़ता जा रहा है। चंद दिन कबल हज सेवा समिति के वफ्द ने मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात करते हुए ग्लोबल टेंडर तलब करने की अपील की थी, जबकि मरकजी वजीर ने इससे साफ इनकार कर दिया था। और इसी के बाद हज सेवा समिति ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस केस की अगली समाअत 22 अक्टूबर को होनी है। सब्सिडी खत्म कर दिया सरकार ने और किराया दुगुना तिगुना हाजियों से वसूला जाने लगा। 90,000 रुपये वाराणसी से, 1 लाख रुपए श्रीनगर से, 1 लाख रुपए आपके गुवाहाटी से और 58,000 रुपये बॉम्बे से किराया हाजियों का वसूला जाने लगा। तो हज सेवा समिति ने ये महसूस किया कि अब ग्लोबल टेंडर होना चाहिए। इसका पारदर्शिता और सफाई और साफ सुथरा निज़ाम होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आइंदा 16 अक्टूबर को आपनाए कदीम का इजलास यानी एलुमनाई मीट मुनक़िद की जाने वाली है और इसमें मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में मंदोबीन शिरकत भी करेंगे, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी उत्तर प्रदेश के साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिजवान अहमद होंगे। मज़कूरा तफसीलात आज एलुमनाई अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर MM सुफियान बेग ने मीडिया से बातचीत में दी।
जो 16 अक्टूबर 2018 को रखी है हमने, और इसमें अलुमनाई पूरे दुनिया से अलुमनाई इसके अंदर आ रहे हैं, और हमने इस बार जो है वो थोड़ा डिफरेंट इसका नेचर रखा है। इनॉग्रल सेशन होगा, उसके बाद एक पैनल डिस्कशन है, रोल ऑफ अलुमनाई इन एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग, जिसमें हम अलुमनाई को बताएंगे कि वो हमारी क्या मदद कर सकते हैं एक्रेडिटेशन में और रैंकिंग को ऊपर ले जाने में, क्योंकि हमारा नैक एक्रेडिटेशन अब 5 साल का मिला था, वो अब रिन्यूअल होगा उसका 2 साल में, तो अभी से हमें उसकी तैयारी करनी है। हलाल सरमायाकारी के नाम पर धोखा देने के मामलात ने कर्नाटक के मुसलमानों को तशवीश पे मुब्तला करके रख दिया है और हालिया महीनों में एक के बाद एक धोखाधड़ी के ऐसे मामलात सामने आए हैं। हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? बेंगलुरु के अवाम, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए चंद वाकयात परेशानी का सबब बने हुए हैं। शहर में चंद कंपनियों ने हलाल सरमायाकारी के नाम पर गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को धोखा दिया है। इस धोखाधड़ी से मुतासर अफराद अब पुलिस स्टेशंस और अदालतों के चक्कर काट काट कर परेशान हो रहे हैं। ये अफराद अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा, खून पसीने से कमाया हुआ पैसा गंवा बैठे हैं और अब बेबसी के आलम में सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के मुंतजिर है। हमारी बहुत सेविंग्स, हमें दाल का मेहनत के पैसे, बच्चों के फीसा को बनने के पैसे, शोहर को झूठ बोलने के पैसे, सब हमें बचा को डालिए। जरा हमारे से तुम्हें मदद करो, हमें बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है, सब बहुत परेशान है। 2.5 लाख सर, मेरा 600 मेरे बच्चों का फ्यूचर के वास्ते, मेरा घर का किराया और मेरे बच्चों के फीस के वगैरह होता है करके मैं सोच के डाली। सारा रोड की हो गई। मैं परसों से सुसाइड करने ही चले गई थी। मैं मुतासरा अफराद के हक में आवाज उठाने वाले कहते हैं कि बेंगलुरु और दीगर शहरों में कई हजार अफराद ने धोखा खाया है। बगैर तहकीक किए सरमाया लगाना, कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच, कंपनियों के बुलंदबांग वादों पर भरोसा कर लेना अवाम के लिए धोखे का सबब बन जाता है। ये जो धोखे में आने के लिए ये लोग जो इस्तेमाल किए हैं कि जो बड़े बड़े कंपनीज के हलाल इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े कंपनीज का ये लोग नाम लिए, जैसे कि अरफा स्कूल या इस्लामिक वर्ल्ड, अब पता चला कि वो भी बेचारे धोखे का हैं। इसकी जांच होने के बाद पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत। मैं अभी हाल ही में जो है एम्बिडेंट कंपनी जो है, इसके मालिकान जो है कंपनी भी बंद हो गई और वो फरार भी हो गए। आला वेंचर्स कंपनी भी बंद हो गई, लोग भी किसी को नहीं मिल रहे हैं। अजमीरा है, ऐसी कई कंपनियां हैं। अब नई नई ये कंपनियां हैं, मार्गनल, ये सब कंपनियां जो है लोगों के पास बहुत बड़ा नफ़ा देने के और ख़ास तौर से ये वादा करते हैं कि ये जो है इस्लामिक तरीके से और हलाल इनकम है। मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि जिन लोगों ने पैसा डाला है, पैसा डालने से पहले देख लें कि ये कौन लोग हैं जो कंपनियां चला रही हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई भी कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही सीबी में रजिस्टर होती है। मुतासरीन ने पुलिस स्टेशन के अलावा रियासती अक़लियती कमीशन में भी शिकायत दर्ज करवाई है। वज़ीर-ए-आला HD कुमारस्वामी और आला पुलिस ऑफिसर्स को भी इस मसले से वाकिफ करवाया गया है, लेकिन अब तक मुतासरीन को किसी तरह की राहत नहीं मिल पाई है। हमें तो अपनों ने ही लूटा के मिस्दाक मुतासरा अफराद अब अपने किए पर पछता रहे हैं। दूसरी जानिब ये सवालात भी उठ रहे हैं कि हलाल सरमायाकारी के नाम पर धोखा देने का ये सिलसिला आखिर कब बंद होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम लीडरान आखिर इस अहम मौजू पर यूं खामोश क्यों बैठे हैं? ये लोग अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद की रिपोर्ट। यूपी में आईन और कानून की हालत के सबब अमन पसंद लोग मायूसी में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम तबके के लोग मानते हैं कि मौजूदा हुकूमत उनके साथ गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी रवैया इख्तियार कर रही है। पुलिस के जरिए बेगुनाहों पर मजालिम बर्पा किए जा रहे हैं और बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और दीगर कई तंजीमों के लोग कानून हाथ में लेकर आम लोगों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।
मगरबी यूपी के उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से पोशीदा नहीं, छुपा हुआ नहीं। पुलिस है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो चुकी है। मारूफ सहाफी वंदना मिश्रा के मुताबिक पुलिस बेगुनाहों को पकड़कर इसलिए मार देती है कि मुजरिम उसकी पहुंच से दूर है और इसे एनकाउंटर दिखाकर इनाम और तमगे हासिल करने होते हैं। सिर्फ वंदना मिश्रा ही क्यों, बल्कि कई सहाफी और दानिश्वर यही कहते आ रहे हैं। हाल ही में मगरबी यूपी के कई इलाकों का दौरा करने वाले सहाफी और कलमकार हैरत ज़दा हैं और कहते हैं कि खुलेआम तशद्दुद बर्पा किया जा रहा है। हुकूमत अहले तशद्दुद की पुष्टपनाही कर रही है। सरकारी आतंक की वजह से जो एक माहौल क्रिएट किया गया है, पूरे छोटे छोटे गिरोह बना करके मालूम जानबूझ करके अक़लियतों पे जो हमले किए जा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, बहुत कम है। ये पुलिस बेलगाम हो गई है, ये पैसा वसूलती है और इसने गुंडई के तहत मारा है विवेक तिवारी को, प्रशांत चौधरी ने। उसके बाद नौशाद और मुस्तकीम का केस पहले हो चुका था, उसके बारे में हमको पता चला कि कहानी कुछ और है। अमरीश मिश्रा ने मंगल पांडे सेना इसलिए बनाई थी कि बीएचपी, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और दूसरी ऐसी ही तंजीमों के खिलाफ खड़े होकर दबे कुचले लोगों की हिमायत की जा सके। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि अतरौली में अमरीश मिश्रा पर ही जानलेवा हमला तक कर दिया गया। इंतहा तो ये हो गई कि जब उन्होंने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की तो उनकी FIR तक दर्ज नहीं की गई। 1 साल का आंकड़ा है इस गवर्नमेंट का, 2200 इनकाउंटर हुए 1 साल में, जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, देन उसके बाद दलित है, उसके बाद अदर है। मुस्लिमों को देखना चाहिए कि किसी एक धर्म पे कास्ट नहीं, धर्म पे टारगेट किया जा रहा है। इस गवर्नमेंट का ये काम है। बजरंग दल वाले जो ये कर रहे हैं, घेर घेर के मार रहे हैं, ये क्या अपराध नहीं है? ये क्या साधु संत वाला काम कर रहे हैं? ये कौन शरीफों वाला काम है कि पूरे गुंडों झुंड के रूप में निकले और एक आदमी को पकड़ लिया? अगर ये मालूम हो कि मुसलमान है तो उसको मार ही डाला, वरना बुरा। अभी परसों की अलीगढ़ की घटना देख लीजिए, पंकड़ी पाठक, अमीश मिश्रा, ये पूरा ग्रुप गया था जिसमें एक भी मुसलमान नहीं था, और इन लोगों ने सिर्फ इसलिए कि उन मुसलमानों की हमदर्दी में ये ग्रुप गया था, इस तरीके से घेर के बुरी तरह मारा। अमरीश मिश्रा के साथ जो कुछ हुआ, अगर वो सुन लिया जाए तो यही कहना पड़ता है कि अब आईन और कानून, दस्तूर और जमहूरियत सिर्फ किताबों में मौजूद है। जब सब कुछ आला मनसबों पर बैठे लोगों के इशारे पर हो तो कोई करे भी तो क्या। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि मुल्क और प्रदेश की भलाई इसी में है कि सबको साथ लेकर चला जाए। गौर करना चाहिए बरसर इख्तियार हुकूमत को कि वो अपनी रविश तब्दील करे और उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी मज़ाहिब के लोगों को इंसाफ दे सके, सबके हकूक़ की बाजियाबी कर सके। कैमरामैन SK वर्मा के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर।